Hello dear students, welcome back to our channel all about NCRT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. So dear students, आज हम लोग करने वाले हैं हमारा English reader which is your Honeydew book, chapter number 5 which is The Summit Within. Moreover, it is very interesting chapter. We will read it, we will understand, and if I talk about the chapter, so chapter is little deep, but I think that when we will read it thoroughly, then we will get to understand that what is even in the chapter, and all the things will be clear to you very much. So if you are new in our channel, please get it subscribed, because we bring these types of videos only for you, so that your education doesn't stop till here and it goes the far away. Okay, so dear students, first before we start the chapter, I wanted to tell you the meaning of summit, because in your book there is written the chapter name is The Summit Within, right? आपके chapter का name दिया है The Summit Within. So the first thing that we need to do before starting the chapter is this, that we need to know what is the meaning of summit within. First, if I talk about summit, the summit means is the highest peak of the mountain. I am saying of a mountain because in this chapter you will see that this chapter talk about mountains, but real meaning of summit is this, that the highest point of the life or whatever, right? So if in exam it will come that what is the meaning of summit, अगर summit की meaning पूछी जाएगी, so you will write the highest point of life. Okay, yeah, exactly what you have to write in your examination. Okay, I think this is clear to you all. So let me first write the meaning. So I will, in between of the session, I will tell you that what are the important questions for your exam, so that in your when you will get your exam paper or something, when your exam will come, so it will be easy for you to revise, right? Now, what do you understand by within? अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा that the summit मतलब होता है highest point of whatever. कोई भी चीज़ हो उसका हाईएस्ट पॉइंट की बात की जाती है तो इट इज़ समिट. ओके, बट अगर मैं आपसे पूछूँ दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ समिट विदिन, ये विदिन शब्द आपको यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? द समिट विच इज़ इन आवर माइंड्स, राइट? ऐसा समिट जो हमारे अंदर है, राइट? हमारे अंदर है. द समिट ऑफ अ माइंड, हाईएस्ट पॉइंट जो हमारे माइंड का है, राइट? और ऐसा नहीं है कि भाई हाईएस्ट पॉइंट को पहुंचने के लिए, कोई भी चीज़ को हाईएस्ट में पहुंचने के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है. दिस आई नो एंड आई होप दैट यू ऑल्सो नो दिस थिंग्स, राइट? सो आज हम लोग पढ़ेंगे कि नॉट ओनली इन योर नॉट ओनली दैट आपने एग्ज़ाम में अच्छा कर लिया, आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपके हाईएस्ट जा रहे हैं, बट if I talk about the real summit of your mind, so what you will say? मतलब आपके अंदर के हाईएस्ट पॉइंट को पहुंचने के लिए भी हमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है. ये आपको इस चैप्टर में बताया गया है. लेट्स रीड इट चैप्टर एंड अंडरस्टैंड इट. फर्स्ट हम लोग बिफोर यू रीड पार्ट पढ़ेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हियर इज़ द बिफोर यू रीड. Major H.P.S. Ahluwalia was a member of first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point of the world? Let us hear his story on his words, climbing the summit and then the more difficult task of climbing summit within. सो अब देखो, इस चैप्टर में बात की गई है मेजर एच.पी.एस. आलूवालिया जी की. मेजर एच.पी.एस. की फुल फॉर्म है हरिपाल सिंह. ओके, मेजर हरिपाल सिंह आलूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1961. वन वर्ड आंसर बन सकता है, सो यू हैव टू अंडरलाइन दैट. ओके, नाउ सी हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टॉप ऑन द हाईएस्ट पॉइंट. जब भी आप कोई हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचते हो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि we feel very happy that we are on the highest peak of the mountain, or we are on the highest point of our life, right?
सो जब वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड में पहुँचे हैं माउंटेन के जरिए से, तो उनको कैसा महसूस हुआ उस समय, उनकी स्टोरी आज हम उनके ही वर्ड्स में सुनने वाले हैं। ये उन्होंने ही लिखी है, राइट। और उसके बाद फिर इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क वो आता है, द क्लाइंबिंग समिट विद इन यानी कि हमारे अंदर का समिट, राइट। हमारे अंदर, हमारे माइंड, हमारी सोल का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, right? So let's start this chapter. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. The physical in me seemed to say, "Thank God it's all over." However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing, and there will be nothing higher to climb, and all roads hereafter will lead down? So now here it is saying, मेजर एच.पी.एस. आलूवालिया जी कहते हैं that ऐसे इमोशंस जो सर्ज यानी कि एरोस से सडनली, जैसे मैं हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा माउंट एवरेस्ट में, मैं सबको देख रहा था नीचे। पेनोरमा का मतलब होता है व्यू ऑफ वाइड एरिया, बिकॉज अगर हम हाईएस्ट पॉइंट में होते हैं तो हमें नीचे का एरिया बहुत छोटा दिखता है। दिस इज समथिंग विच वी ऑल नो, राइट। नाउ सी, द फिज़िकल इन मी सीम टू से, फिज़िकल इन मी यानी कि मेरे अंदर कहने लगे, थैंक गॉड इट्स ओवर, यानी कि वाओ इट्स ओवर, फाइनली आई हैव रीच इन द हाईएस्ट पॉइंट, राइट। कभी कभी हम कहते नहीं है, जैसे हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो, राइट, हमारे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, दैन अगले ही दिन हम कहते हैं, या एग्ज़ाम ख़त्म होने के जस्ट अ मिनट बैक वी से दैट ओ गॉड इट्स ओवर, अब मेरे को कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, ओके इट्स ओवर now I have to do nothing, right? Sometimes we are this much happy, our physical in me, वही एच.पी.एस. आलूवालिया जी कहते हैं that physical in me यानी कि मेरे अंदर ऐसा मेरे को महसूस हुआ, बिल्कुल मतलब physical in me यानी कि मेरी बॉडी, क्योंकि माउंटेन क्लाइंब जब हम डिस्टेंस करते हैं तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, राइट। हमें फिजिकल वर्क बहुत करना होता है, क्लाइंबिंग फ्रॉम द फूड, देन हमें अच्छी तरह माउंट एवरेस्ट में बहुत सारी आइस होती है, देन आइस को निकालना फिर चढ़ना, दैट वाज अ वेरी मच डिफ़िकल्ट टास्क। और ये टास्क को करने के बाद फिजिकल बॉडी तो यही कहेगी चलो फाइनली हो गया, मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, राइट। ऐसा ही एच.पी.एस. आलूवालिया जी के साथ हुआ था। लेकिन वो जुबिलेंट यानी कि होता है वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस, राइट। जब हमारी सक्सेस होती है तो हम बहुत जुबिलेंट मतलब बहुत हैप्पी हो जाते हैं, राइट। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस, टिंज यानी कि ट्रेस और सेड ऑफ ट्रेस, सैडनेस यानी कि थोड़ी सी सैडनेस थी। मैं हैप्पी नहीं था लेकिन सैडनेस भी थी। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, क्या वो इसलिए थी क्योंकि मैंने क्लाइंबिंग में सबसे ऊपर पार कर लिया है और इसके बाद फिर कोई भी ऐसा हाईएस्ट पॉइंट नहीं है जहाँ मेरे को पार करना है, क्या ये इस वजह से थी? तो ये आपके एच.पी.एस. आलूवालिया जी कह रहे हैं। Then, by climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. जब आप समिट यानी कि समिट ऑफ एवरेस्ट का क्लाइम करते हो तो आपको एक डीप सेंस ऑफ जॉय यानी कि हैप्पीनेस आती है और थैंकफुलनेस आती है। आपकी फिजिकल बॉडी तो थैंक गॉड ही कहेगी क्योंकि बिकॉज आपने बहुत मेहनत करी है माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने में, राइट। आपको एक अलग ही टाइप की हैप्पीनेस आती है। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, ऐसा जॉय तो आपको आपकी लाइफ के लास्ट तक भी आपके पास आने वाला है, ठीक है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, ये एक्सपीरियंस यानी कि जब आप माउंट एवरेस्ट क्लाइम करते हैं इसके बाद जो इंसान माउंट एवरेस्ट क्लाइम करता है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, बिकॉज ही हैव सीन दैट हाउ मच ही और शी हैव सेक्रीफाइस्ड टू climb up the Everest, and moreover some of the life lessons also we learn by climbing the Mount Everest. Okay, now next let's see, as I
look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easy to climb. तो अब जैसे उन्होंने एवरेस्ट क्लाइम कर लिया था, तो वो ये नहीं कहती कि बस वही हो गया, अभी एक समिट और था. समिट यानी कि द हाईएस्ट पॉइंट विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल. फॉर्मिडेबल मीन्स दैट वो इतना आसान भी नहीं था, नॉट ईजी टू क्लाइंब, और यू कैन से फॉर्मिडेबल मीन्स इतना ईजी नहीं था, राइट. नो ईजियर टू क्लाइम एंड नो लेस फॉर्मिडेबल, यानी कि इतना जैसे आप लोग बोल सकते हो कि भाई जैसे एवरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, सो एवरेस्ट इज समथिंग विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट. ईजी नहीं है, डिफ़िकल्ट है. देन मोर ओवर क्या हम एवरेस्ट के बारे में जानते हैं, डेट एवरेस्ट में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, राइट. हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, राइट. अगर कोई बंदा विदाउट ट्रेनिंग वहाँ पे एवरेस्ट चढ़ता है तो वो चढ़ नहीं पाएगा, राइट, इजीली, क्योंकि उसको कुछ बेसिक चीज़ है, ट्रेनिंग नहीं पता कि क्लाइम कैसे करते हैं, राइट, और कैसे मैं इसको हटाऊँ बीच से. तो दीज ऑल आर थिंग्स. वैसे ही आपके समय तो माइंड में भी ये फॉर्मिडेबल, नो लेस फॉर्मिडेबल, नो इजियर टू क्लाइम, इतना आपका जो है सरल वगैरह भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि भाई इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है. इसमें भी आपको एक मेहनत या यू कैन से हार्ड वर्क, या आपको कोई लाइफ लेसन सीखने पड़ते हैं जिसकी वजह से आप अपने समय तो माइंड तक पहुंच पाते हैं, राइट. नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको HPS आलूवालिया जी की फ़ोटो भी दी गई है, दैट्स वेरी गुड. सो यहाँ पे देखो, इवन व्हेन गेटिंग डाउन from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. Why did act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of past, something done yesterday. With every passing day, it will become more remote. And then what will remain? Would my memories fade slowly away? अब वो कहते हैं जब मैं समिट से एक बार नीचे उतर गया, जैसे ही मेरा फिज़िकल एग्जॉस्शन, यानी कि अभी तक मैं क्लाइम कर रहा था, मेरे फुटवर्क में बहुत ज़्यादा फुटवर्क था, मेरे बहुत लेग्स भी थक गए, हाथ भी थक गए. अब मेरा फिज़िकल एग्जॉस्शन जो है वो चले गया. एग्जॉस्शन मीन्स फटीग, या आप कह सकते हो टायर्डनेस, या राइट, क्योंकि जब हम लोग कभी कभी कहते नहीं समझ में, ओह I am exhausted now, I need to sleep for an hour, right? Sometimes we say like this. So exhaust word really means this, that we are so tired that we cannot work anymore, right? So we have to take a sleep. सो लाइक दिस, जो वो कहते हैं कि जैसे ही फिज़िकल एग्जॉशन जो है चले गया, मैंने अपने से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया. क्वेश्चन हम लोग कभी नहीं कहते, क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन. ओके, इन हिंदी आई एम सेइंग इज क्वेश्चन, बट इन इंग्लिश यू विल से क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ पे आई बिगेन टू आस्किंग द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट. तो वो कहते हैं कि भाई मैं अपने से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूँ कि भाई मैंने क्लाइम क्यों किया एवरेस्ट, क्यों, ऐसा क्या चीज़ थी जिसकी वजह से मेरे को एवरेस्ट जो है क्लाइम करना पड़ा. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? क्यों समिट में पहुंचने के लिए मेरी इमेजिनेशन जो है उसमें इतना ज़्यादा होल्ड है, यानी कि समिट में पहुंचने के लिए क्यों इतना ज़्यादा उसको उत्सुकता वगैरह आप लोग कह सकते हो, राइट. इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ पास्ट. वो अभी पास्ट की चीज़ है, मैं चढ़ चुका हूँ एवरेस्ट, मतलब मैंने वो कर लिया है, मतलब समथिंग विच इज़ डन ऑन येस्टरडे, राइट. कोई भी चीज़ आप येस्टरडे करते हैं तो वो पास्ट हो जाती है, राइट. तो वैसे ही वो पास्ट की चीज़ है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में क्यों समेत आता है. विथ एवरी पासिंग डे वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा जाते जा रहे हैं, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर क्या फीलिंग थी उस समय. एंड देन व्हाट विल रिमेन, क्या सारी जो मेरी समिट में चढ़ने के बाद मेमोरीज थी वो धीरे धीरे चले जाएंगी. दिस वॉज अ वेरी यू कैन से क्वेश्चन जो HPS आलूवालिया जी ने पूछे हैं यहाँ पे. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन से. All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. सबसे बड़ा क्वेश्चन जो HPS आलूवालिया जी ने यहाँ पूछा है, that is that क्यों भाई माउंटेन क्लाइम क्यों करना है, राइट.
ये क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा क्यों कि भाई एचपीएस अहलूवालिया जी ने माउंटेन क्लाइम करा, क्यों, ऐसी क्या नेसेसिटी आ गई थी कि उनको माउंटेन क्लाइम करना पड़ा, राइट? This is the question. Now see, it was not easy to answer the question. The simplest answer would be, as others have said, because it is there. Simplest answer ये होगा because वो है, right? Everest है, and something which is exciting that we can climb, and human beings हमेशा, जैसे आपने देखा होगा, राइट, जब भी हम कोई छोटा मोटा काम करते हैं, राइट, सपोज यू से दैट देर इज़ अ 5 मार्क्स क्वेश्चन एंड यू आर गेटिंग 5 आउट ऑफ 5, यू आर हैप्पी, राइट, सब हैप्पी हैं, बट imagine that there is a 60 marks paper and you are getting 60 out of 60. Would it be greater achievement than the 5 marks? And you will be more happy when you get 60 out of 60 because you say, अरे वाह, मैं तो 60 out of 60 आ गया, wow, that's so good, I'm so happy and relaxed. But in 5 marks paper, you will not be that much happy as you were in the 60 marks paper. This is so because human beings always wanted to take obstacles and difficulties so that they can achieve something, right? यही चीज़ थी. तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था दैट ऐसा क्यों है कि भाई लोग माउंटेन्स क्लाइम कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने आंसर करा दैट सिंपलेस्ट आंसर इसका ये हो सकता है बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि वो है, राइट? एचपीएस अहलूवालिया जी कहते हैं क्योंकि वो है. एंड एज वी नो it presents great difficulties. Man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. जो इंसान होता है उसको ऑब्स्टिकल्स पार करके बहुत खुशी मिलती है. दैट्स द रीज़न वाई द पीपल क्लाइम माउंटेन्स, राइट? द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग माउंटेन आर फिजिकल यानी कि जिसमें हमारा फिजिकल बॉडी लग रही हो, राइट? फुटवर्क लग रहा है, हैंड्स का यूज़ लग रहा है, राइट? A climb to a summit means endurance, persistence, and willpower. A climb to a summit. Summit means आपका highest point. Here we are not talking about the summit of mountain, but यहाँ पे we are talking about to climb a summit. यानी कि कोई भी summit, कोई भी हाईएस्ट पॉइंट को अचीव करने के लिए हमारे पास ये 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, विच आर एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर. एंडोरेंस यानी कि आपका फिजिकल, राइट? देन परसिस्टेंस की बात करें यानी कि आप कितने पेशेंट, आपके अंदर कितना पेशेंट है कि भाई हाँ, और कोई बात नहीं, आई एम ट्राइंग एंड ट्राइंग, आई एम नॉट लीविंग इट. बट विल पावर is the you can say na the most powerful power. will power यानी कि अपनी अंदर की शक्ति. भाई हम चाहते हैं कि हम ये अचीव करेंगे एंड दैट इज़ समथिंग दैट मेक्स अ पर्सन टू अचीव अ ग्रेटर हाइट्स इन देयर लाइव्स, राइट? क्या? will power is that thing, okay? The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me. Also, exhilarating means very happy, very exciting, you know. Exhilarating means very exciting, right? Demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was me. Exhilarating यानी कि very exciting, right? Then I have a more personal answer to the question. वही क्वेश्चन, why people climb mountains. From my childhood, I have been attracted by mountains. I had been lost when away from the mountains. In the plains, mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are means of communion with God. तो लेकिन एचपी अहलूवालिया जी कहते हैं दैट अगर मेरे पास इसका बहुत पर्सनल आंसर है, यानी कि वो आंसर कि मैं क्यों क्लाइम करना चाहता था माउंट एवरेस्ट, एंड दैट इज़ दिस, क्योंकि एचपी अहलूवालिया जी कहते हैं दैट माउंटेन जो है बचपन से ही मेरे को बहुत अट्रैक्ट करते आ रहे हैं. मैं माउंटेन से बहुत अट्रैक्ट होता हूँ और साथ ही साथ मेरे को मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, या लाइक यू कैन से दैट
मेरे को बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता जब माउंटेन्स मेरे चारों ओर नहीं होते। इन प्लेन्स, माउंटेन्स क्यों अच्छे लगते हैं? बिकॉज माउंटेन्स आर द नेचर्स बेस्ट। उनकी ब्यूटी, उनकी मेजेस्टी, यानी कि उनका भाई इतनी ज़्यादा माइटी एज यू कैन से ना, स्ट्रॉन्ग जो उनकी पावर होती है, और वो ग्रेट चैलेंज उनके सामने खड़े करती है। और उनको ये भी लगता था एच पी आलूवालिया जी को दैट माउंटेन्स आर द मीन ऑफ कम्यूनियन विद गॉड। कम्यूनियन यानी कि गॉड का मैसेज पहुंचाने के ही वो एक साधन है। Now, once having granted this, the question remains, why Everest? लेकिन क्वेश्चन एक और रिमेन करता है, दैट एवरेस्ट ही क्यों? Because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. एवरेस्ट इसलिए बिकॉज वो हाईएस्ट है, यानी कि सबसे ऊंचा है, देन माइटियस्ट यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग है, एंड हैज़ डिफीड यानी कि बहुत सारे लोगों के प्रीवियस अटेम्प्ट्स जो है वो पूरे नहीं कर पाए हैं माउंटेन क्लाइंबिंग में। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वन एनर्जी, यानी कि हर एक की जो लास्ट में बची हुई भी एनर्जी होगी ना, वो भी जो है माउंटेन्स ले लेते हैं, राइट। तो वो यही बता रहे हैं दैट माउंटेन जो है वो कहीं, मतलब जो एवरेस्ट है वही जो मैंने है इसलिए चुना बिकॉज वो जो माउंटेन है, जो आपका एवरेस्ट है, वो हर एक इंसान की आउंस ऑफ वंस एनर्जी, यानी कि लास्ट एनर्जी का आउंस भी बचा है ना, वो भी आपका जो है वो माउंटेन क्लाइंबिंग करते समय चला जाएगा। इट इज़ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, यानी कि रॉक और आइस के साथ आप देखो भाई एवरेस्ट में देर आर आइस, राइट, वहाँ पे आइस गिरी होती है। सो स्ट्रगल यानी कि पहले आइस को सामने से हटाना है, फिर वो इतना स्लिपरी है, उसमें आपको चलना है, दैट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू मेक अ बैलेंस ऑन माउंटेन, राइट। और कभी भी आप नीचे गिर सकते हो, राइट, कभी भी आप जो है आपकी डेथ हो सकती है माउंटेन क्लाइंबिंग करते समय, राइट। ऊपर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, राइट। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स जो है आती है माउंटेन क्लाइंबिंग करते समय, ठीक है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ अवे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। जब आपने एक बार ठान लिया कि भाई हाँ माउंटेन चढ़ना है, तो वो लाइफ फिर से जो है वो टेक नहीं किया जा सकता है कि भाई हाँ आप नहीं चढ़ना, अब मैं उतर रहा हूँ फिर से नीचे, क्योंकि जितना आपको स्ट्रगल जो है आगे लग रहा है, सेम स्ट्रगल आपको पीछे भी लगने वाला है उतरते समय। सो इट इज़ बेटर दैट आप आगे ही चल लो, राइट, आपका और हो जाएगा थोड़ा रास्ता पूरा। द पैसेज बैक इज अ डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, राइट। तो ये भी बता दिया। then when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of battle fought and won. लेकिन जब एक बार समिट हम चढ़ लेते हैं, तब एक्सिलरेशन यानी कि वेरी एक्साइटिंग जॉय आपके पास होता है। देन आपको ऐसी सेंस ऑफ बैटल आती है दैट यू हैव फॉट द बैटल, एंड वो बैटल आप जीते भी हो, ऐसी आपको फीलिंग आती है आफ्टर यू हैव क्लाइंब द माउंटेन, the summit, right? There is a feeling of victory and of happiness. Glimpsing a peak in a distance, I get transported to another world. तो वो कहते हैं I experience a change within myself which can only be called mystical by its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way. The peak draws me to it as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. तो अब वो कहते हैं दैन उस समय एकदम ऐसी फीलिंग होती है दैट वी हैव डन समथिंग, विक्ट्री है, विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, समथिंग लाइक दैट, ओके। अब देखो जब वो एक बार चढ़ जाते हैं तो वो एकदम दूसरे वर्ड में चढ़ जाते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं दैट ये जो आपकी फीलिंग है ये बहुत मिस्टिकल है। मिस्टिकल मीन्स वेरी स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मीन्स रिलीजियस लाइक समथिंग, राइट। उसकी ब्यूटी, अलूफनेस,
राइट, देन माइट यानी कितना स्ट्रॉन्ग है, रग्डनेस एंड बाय द डिफ़िकल्टीज जो उसको क्लाइम करते समय आती हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो एक अटेंशन ड्रॉ करती है दैट यस आई डिड द एवरेस्ट, राइट, इट इज़ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट। ये ऐसा चैनल है जिसको हम लोग रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. लेकिन वो कहते हैं HPR वाले जी, मेरे को लग रहा है कि मैंने अभी भी आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया है कि क्यों मैं एवरेस्ट चढ़ना चाहता था. इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, वाई यू ब्रेथ, वाई डू यू हेल्प योर नेबर, why do you want to do a good act, why do you want to do a good act. So ये आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं that why do you breathe, आप क्यों सांस लेते हैं, because you wanted to live, right. आप क्यों अपने नेबर्स की हेल्प करते हैं, because you wanted to be a good neighbor, right. So there is no final answer possible, and just there is a fact that Everest is not just a physical climb. The man who has been to a mountain tops becomes conscious in the spatial manner of his own smallness and large universe. तो वो कहते हैं दैट वो इंसान जो माउंटेन के टॉप में चढ़ता है वो खुद को वो बहुत कॉन्शियस बन जाता है एकदम स्पेशल मैनर में ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन अ लार्ज यूनिवर्स. मतलब वो उसको ऐसा लगता है कि भाई व्हेन यू आर यू नो व्हेन यू क्लाइंब अ माउंटेन, राइट, यू क्लाइंब अ समिट मीन्स यू आर इन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन. अब वहाँ आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी दैट इन दिस होल यूनिवर्स आई एम नथिंग, आई एम जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, राइट, I am just a small part. And why does it meaning come? Because some people who think that they are so, they are only the one, they are only the prince and all, right? They have some ego, right, on them. But when they climb a mountain on the highest point of the world, they feel like this, that, oh, I am a small part of this universe, right? I am not a big. I am a small part of this whole universe, right? Then they have this type of feeling. The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. फिज़िकल कॉन्केस्ट यानी कि जब आप फिज़िकली मेहनत करके यानी कि आप अच्छी तरह अपने फुट वर्क का इस्तेमाल करके जब माउंटेन चढ़ते हैं तो वो आपका एक पार्ट हो गया कि भैया आपने विक्ट्री करी है, आप माउंटेन्स को चढ़ रहे हैं, आपका एक पार्ट ऑफ अचीवमेंट हो गया. देयर इज़ मोर दैन दैट. It is followed by the sense of fulfillment. There is a satisfaction of deep urge. Yes. So यहाँ पे हमने ये पढ़ा, ठीक है डियर स्टूडेंट. So there is more to it than that. It is the followed by the sense of fulfillment. ऐसा आपको महसूस होता है कि भाई आपने कोई चीज़ अचीव करी है. That means that you have fulfilled something, right? There is a satisfaction of deep urge to rise above one's surrounding. एक satisfaction आपको आता है that yes, I have completed this task, right? It is the internal love for adventure in man. ये internal love of adventure in man means that आपके अंदर ही अंदर आपको एक मतलब एक passion against the adventure is there and you wanted to really climb up in the mountain, right? This is a feeling, right? Then next आपका आता है the experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. तो ये जो आपका एक्सपीरियंस है ये आपका मेनली फिज़िकल इज़ नॉट अ मेनली फिज़िकल यानी कि ये सिर्फ फिज़िकल ही नहीं है कि भाई आपने अपना फुटवर्क करा, आपने मेहनत करी, आपका हो गया. इट इज़ इमोशनल, इट्स स्पिरिचुअल यानी कि इसमें आपने अपने अंदर जो एक सेटिस्फेक्शन है वो पूरा करा तो और कहीं ना कहीं जो इमोशन था जिसके लिए आपने इतनी हार्ड वर्क करा वो आपका जो इमोशनल फीलिंग है वो आपकी फुलफिल होती है. देन इट इज़ स्पिरिचुअल, ये आपको बहुत ही सेटिस्फेक्शन दिलाता है. देन आते हैं कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स. टिपिकल क्लाइंब यानी कि बहुत डिफ़िकल्ट क्लाइंब जो मतलब आप लास्ट हाइट में हैं, आप एवरेस्ट को लगभग क्लाइंब करने ही वाले हैं, आप लास्ट हाइट में हैं. सो
उस समय यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, आप एक रोप शेयर कर रहे हैं एक दूसरे क्लाइंबर के साथ। यू फर्म इन, ही कट्स द स्टेप इन हार्ड आइज, वो धीरे धीरे स्टेप्स में बढ़ता है हार्ड आइज में ऊपर। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर अवे अप, यानी कि फिर आपने आपको रोप देता है, फिर आप चढ़ते हो। द क्लाइंब इज ग्रिम, you strain very nerve as you take every step, आप बहुत ही मतलब एक बहुत ही वी कैन से दैट आप बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेते हो, राइट। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ हेल्प गिवन बाय अदर्स, फेमस क्लाइंबर्स ने ये भी बताया है कि उन्होंने उस समय उनको किन्होंने हेल्प करी थी, राइट। उसके बाद दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, उन्होंने ये भी रिकॉर्ड करा है कि उनको ये हेल्प क्यों चाहिए थी और कैसे उनकी हेल्प करी गई। You curse yourself for having let yourself in this. You wonder why you ever undertook the ancient. There are moments. तो अभी रुक जाओ डिस्टेंट, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, दैट ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, यानी कि जो ब्रीदिंग होती है माउंट एवरेस्ट में जब आप क्लाइंब करते हैं इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। क्योंकि जब आप हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचते हैं धीरे धीरे क्या होता है, आपका जो एयर होती है उसकी जो लेयर होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू ब्रेथ, राइट। आप अच्छी तरह ब्रीथ भी नहीं कर पाते हो, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। You curse yourself for having let yourself in this. Hey, you have wondered why you ever undertook the ancient. There are moments when you feel like going back. वहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे मोमेंट होते हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत हो गया, मेरे से नहीं होगा, मेरे को जाना पड़ेगा वापस, नहीं मेरे से नहीं हो सकता, I can't do it, right? Sometimes we have like this sometimes we have like this feeling. It will be sheer relief to go down. बहुत ही मतलब sheer relief होगा जब आप नीचे जाते हो instead of up, but almost at once you snap out of that mood. That is something in you that does not let you give up. लेकिन उसी समय आपको एक ऐसी फीलिंग आती है कि भाई नहीं, मेरे को चढ़ना है, I have to climb. और जो ये फीलिंग है ये आपको गिव अप करने से गिव अप नहीं करने देती जो आप स्ट्रगल कर रहे हो उसके लिए। एंड यू गो ऑन, योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू जस्ट अनदर 50 फीट और 100 मे बी। तो आपका जो कंपेनियन होता है वो भी आपको जो है अच्छी तरह रिक्वेस्ट करते रहते हैं, अरे नहीं बस 100 फीट बचा है, यू कैन डू इट, ओनली 50 फीट, जस्ट डू इट, राइट। योर कंपेनियन ऑल्सो डू लाइक दिस। इज देयर नो एंड, क्या यहाँ कोई भी एंड नहीं है, क्या हमें चढ़ते ही रहना। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि भाई ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है ना। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने कंपेनियन को देखते हैं और आपका कंपेनियन आपको देखता है, राइट। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और आप दोनों एक दूसरे को देखकर इंस्पिरेशन बनाते हो, राइट। देन सी द नेक्स्ट is that, and then without first being aware of it you are at the summit, और फिर आपको अवेयर भी नहीं होगा कि भाई आप समिट में पहुंच गए, राइट। कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि भाई ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, but at last when you reach the summit there is a feeling of joy, happiness all around you. Like looking around from summit you tell yourself that it was worthwhile. Your silvery peaks यानी कि आइस से ढके हुए हैं, सो इट इज़ उन्होंने सिल्वरी पीक्स कहा है इसको, ठीक है, यानी कि सिल्वर टाइप के। अबे थ्रू द क्लाउड्स इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन दैम, तो अगर आप लकी हो तो सन भी आपको दिख सकता है। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, तो एकदम ऐसा लगता है कि भाई हाँ भाई हीरे जैसे नेकलेस बने हुए हैं हमारे समिट के चारों। Below you see the vast valley stopping down into the distance. It is an ennobling, enriching experience to just look down from your distance to whichever god you worship. लेकिन जब आप नीचे देखते हो तो नहीं, आपको एक ऐसा निशान छोड़ना है कि भाई जिससे आप लोग ये दिखा सको कि आपके मन में आपके जो
लॉर्ड है, आपके जो गॉड है उनके लिए क्या रिस्पेक्ट है. देन यू ऑल्सो वॉन्टेड टू शो दैट या आई एम हेयर बिकॉज ऑफ माई द गॉड, राइट. तो ये फीलिंग दर्शाने के लिए आप अपना कोई भी एक रिलीजियस एविडेंस वहाँ पे छोड़ते हो, राइट. आई लेफ्ट ऑन द एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक. तो HBS अहलूवालिया जी ने एक गुरु नानक की पिक्चर छोड़ी थी. देन रावत जो थे उनके साथ कंपेनियन के तौर में उन्होंने गॉडेस दुर्गा की छोड़ी थी. देन जो पू दोरजी थे उन्होंने बुद्धा ये छोड़ी थी. देन इफ़ आई टॉक अबाउट एडमंड हेनरी, उन्होंने एक क्रॉस को बुरी करा था. और उसके बाद फिर दीज आर नॉट अ सिंबल ऑफ कॉन्केस्ट. ये कॉन्केस्ट यानी कि आप एक जंग जीते हो उसके सिम्बल्स नहीं है. दीज आर द कॉन्केस्ट ऑफ रिवरेंस. तो ये कौन से जो आपके सिम्बल्स हैं ये हैं रिवरेंस के. जैसे भाई हाँ आप इनकी वजह से यहाँ पे पहुँचे हो, राइट. The experience of having climbed to a summit changes you completely. ये आपको पूरा चेंज कर देता है, राइट. There is another summit and within yourself. एक और भी summit है, एक और highest point है आपके अंदर. It is in your own mind. ये आपके खुद के mind में है. Each man carries within himself his ओन माउंटेन पीक. हर एक इंसान अपने अंदर एक खुद का माउंटेन पीक कैरी करता है. ही मस्ट क्लाइम टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ. इट इज़ fearful and unscalable. It cannot be climbed by anyone else. You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of the mountain outside a acne is the act of climbing the mountains within. तो हर एक इंसान के अंदर एक खुद का एक माउंटेन पीक होता है जो उसको क्लाइम करना होता है. तो फुल द नॉलेज, राइट. ये ऐसा नहीं है जो बहुत ही सरल है. इट इज़ अ फेयरफुल. ये बहुत डरावना है. ऐसा लगता है कि ये हो ही नहीं सकता. इट कैन नॉट बी क्लाइम बाय एनी वन एल्स. आपको खुद को इसमें क्लाइम करना पड़ता है. द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू अ समिट ऑफ माउंटेन आउटसाइड द एक्ने इज़ द एक्ट ऑफ द माउंटेन विद इन. टू द एक्ट ऑफ द माउंटेन विद इन यानी कि अंदर के माउंटेन को क्लाइम करने के फिजिकल काम नहीं आएगा. द इफेक्ट्स ऑफ बोथ क्लाइम्स आर द सेम वेदर द माउंटेन्स यू क्लाइम इज फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल. सब में आपको मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो. द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू. तो ये जो क्लाइम है ना ये आपको पक्का चेंज करेगा. It teaches you much about the world and about yourself. ये आपको टीच करती है आपके बारे में और आप अपने बारे में जानते हो इससे. The venture I think to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. Climbing the mountain was a worthwhile experience. The conquest of internal summit is equally worthwhile. The internal summits are perhaps higher than the Mount Everest. HBS अहलूवालिया. तो यहाँ पे हमने पढ़ा दिया स्टूडेंट कि भाई वो बताते हैं कि एज ए एवरेस्टर मेरा एक्सपीरियंस में से कहता है कि भाई जो लाइफ्स के ऑडियल्स हैं यानी कि पेनफुल एक्सपीरियंस है वो हम लोग फेस कर सकते हैं. क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस. वो बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस रहा था ऑब्वियसली. द कॉन्केस्ट ऑफ इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइड. वो भी उतना ही डिफ़िकल्ट है. द इंटरनल समिट आर परहैप्स हाइयर देन द एवरेस्ट. यानी कि अगर आप इंटरनल समिट्स को एक बार रीच कर लेते हो, वर्देबल मीन्स द वर्थ वाइड मीन्स समथिंग विच इज़ हैव अ मूल्य. जैसे हम अमूल्य और मूल्य चीज़ पढ़ते हैं ना, जैसे आपको अगर आप क्लाइम करते हो माउंटेन्स तो वो भी एक मूल्य चीज़ है आपके लिए. मतलब बहुत ही मूल्य है. आपने बहुत अच्छी चीज़ क्लाइम करी है जो आपके लिए यू कैन सी दैट इट इज़ मूल्यवान, राइट. वैसे ही आपकी जो इंटरनल समिट है यानी कि आपके अंदर का जो एक हाईएस्ट पॉइंट है वो भी आपके लिए उतना ही मूल्य रखता है. द इंटरनल समिट हार्ड बेड परहैप्स हायर देन माउंटेन्स. यानी कि आपका इंटरनल समिट आपके माउंटेन से बड़ा होता है. ठीक है. सो दिस वी हैव अंडरस्टैंड.
सो ये स्टोरी आपके लिखी है HPS आहलूवालिया जी ने और लिटिल एब्रिड है, यानी कि इसको थोड़ा सा एक हिस्सा यहाँ पे रखा गया है, वरना उन्होंने बहुत लंबी स्टोरी लिखी है. कॉम्प्रिहेंशन चेक कर रहे हैं. स्टैंडिंग ऑन द एवरेस्ट राइटर वॉज जुबिलेंट एंड सैड. दिस वी नो. देन चूज द करेक्ट ऑप्शन. द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वॉज वन ऑफ द humility and sense of smallness. तो ये उन्होंने बताया था. Strength of the mind refers to मार्क द आइटम्स विच आर नॉट रिविलेंट. ये लिख रखा है, तो कौन से रिविलेंट नहीं है? द ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स और ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन ऑफ कॉमन वेलफेयर, द लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, द ट्रम्पेट ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर्स फॉर अ नोबल क्लॉज, अ फुलर और फिर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. ठीक है. So now I have told you the answers, but in the comment section you have to tell me that why they were the correct answers. Okay. So thank you so much dear students for watching the video. This was very interesting chapter and I have finished it with all of you. Thank you so much for watching.